Good morning, children. This is the fifth video of this second chapter, and in this video, we will discuss about the new notion of kingship in Deccan and the further south. As we discussed earlier, that the North India from the 5th century, 6th century BCE to 6th century CE, the North India was controlled by a 16 Mahajanpad, and amongst those Magad was the most important Janpad at that time. But what about the South India? In South India, there were three dynasties developed and extended their control over this region and area, and the dynasties were Cholas, Cheras, and Pandyas. As you see here, um, Cheras, that was the part of the Kerala, and Cholas, that Cholas dynasty ruled the area of Maharashtra, some part of Maharashtra, Karnataka, and the Pandyas were the most important. They were took over the control over the Andhra Pradesh and most of the Tamil Nadu and some part of Kerala. So this was the major dynasty at that time, Pandyas, but these were also the strongest dynasty at that time. And the southern peninsula was ruled by Cholas, Cheras, and the Pandyas. So what type of dynasties were there and how they took control over the land and their administration? All the descriptions we have seen and collected by the Tamilkam, the Sangam text. So we know about these states from a variety of sources. For instance, the early Tamil Sangam text contained poems describes chiefs and the ways in which they acquired and distributed resources. तमिल संगम टेक्स्ट के बारे में आपने पढ़ा, जिसकी रचना सेकेंड सेंचुरी BCE से लेकर के सेकेंड सेंचुरी CE तक हुई है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट of the knowledge. So all the knowledge we acquired from this text about the South India. So this is the most important Tamil Sangam. सो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनरी पीपल द्वारा क्रिएट किए गए, कंपोज किए गए स्टोरीज एंड फोक टेल्स एंड द सॉन्ग्स एंड पोएम्स हैव बीन इंक्लूडेड एंड एक्वायर्ड बाय द intellectual persons at that time. So this is the most important source for the Tamil history, South history. So many chiefs and kings including the Satavahanas who ruled over parts of western and central India. अब हम लेते हैं सेकेंड सेंचुरी BCE से लेकर के सेकेंड सेंचुरी CE तक. सेकेंड सेंचुरी BCE से सेकेंड सेंचुरी CE तक जो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, वो दैट वाज रूल्ड बाय द सातवाहन डायनेस्टी. सातवाहन आपने 6th क्लास में पढ़ा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी. ही वॉज द स्लैब सन. एक गौतमी एक दासी थी जिनके पुत्र हुए हैं सातकर्णी, और ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनास. तो सातवाहनास के ओरिजिन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. मे बी ही बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश एंड ही टुक कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया and from 2nd century BCE to 2nd century CE, and the Gautamiputra Satkarni was the most important ruler at that time in the Satvahan dynasty. The next was and the Sakas. Sakas को हम कहते हैं कि इनका जो ओरिजिन था वो सेंट्रल एशियन ओरिजिन माना गया है. सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर के आए थे और दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सकास के बारे में एक स्टोरी अभी आपको बतानी है. द सुदर्शन लेक इन गुजरात. यहाँ पे सुदर्शन लेक जो है अभी भी है गुजरात में. वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ये बताया गया है कि आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है ये, और इरिगेशन के लिए सबसे मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर द इरिगेशन. सो वी नो अबाउट इट फ्रॉम अ रॉक इंस्क्रिप्शंस 2nd century CE, और ये सकास रूलर का सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे. इन संस्कृत कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द सकास रूलर रुद्रदामन. रुद्रदामन जो थे सक रूलर थे, और उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि द इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट द लेक विद embankments and water canals was built by a local governor during the rule of the Mauryas. इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि एक लोकल मौर्यन गवर्नर के द्वारा इस लेक का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके तटबंध, उसके एम्बैंकमेंट सारे टूट गए थे, और इसको पूरी तरह से
एम्बैंकमेंट्स जो टूटे हुए थे उसको फिर से रीबिल्ड कराया गया रुद्रदामन के द्वारा, अपने सोर्सेज से, जो उनके पास अपने पैसे थे उससे उसको रीबिल्ड कराया गया। फिर इसी इंस्क्रिप्शन में आगे हम देखते हैं कि विदाउट इम्पोजिंग इन टैक्स ऑन ए सब्जेक्ट अनदर इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम रॉक इन 5th सेंचुरी, और इसी रॉक पे जो 5th सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो गुप्ताज रूलर के द्वारा इस पे लिखा गया। तो 3 जो डायनेस्टीज थी अलग अलग, मौर्य डायनेस्टी जो बहुत पहले हुई 4th सेंचुरी, 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक, तो उसका एक इंस्क्रिप्शन वहाँ पे है। फिर दूसरा इंस्क्रिप्शन आया 2nd सेंचुरी BC का, और 3rd इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे उसी रॉक पे वो गुप्ता रूलर्स का है। तो दिस inscription was the most important inscription and as a source of the as a source to know the Indian history। यहाँ जो आप देख रहे हो एक सैंडस्टोन है, ये सातवाहन किंग का है। द सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ कुशाना किंग। कुशान जो थे वो वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे थे, और ऐसा एक बहुत ही, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि आप रिकग्नाइज करिए इसे कि ये क्या है। ये एक सैंडस्टोन से बना हुआ स्कल्पचर है जो कुशान किंग का माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के माठ जगह पे मिला है। और सेम इंस्क्रिप्शन ऐसा ही, सेम स्टेचू ऐसा ही कोलोसल स्टेचू हमें अफ़गानिस्तान में एक जगह पे मिला है। तो ये दोनों से हम कंपेयर करते हैं कि उनका कहाँ से लेकर के, कुशाना किंग का अफ़गानिस्तान से लेकर के और उत्तर प्रदेश के एरिया तक उसका राज्य था और कंट्रोल था। So the Sakas, a people of Central Asian origin who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent, derived revenues from long distance trade। सकाज के बारे में जाना जाता है क्योंकि इनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया से था, तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज जो इनके डिराइव्ड होते थे, ये एक्वायर करते थे, ये केवल मोस्टली ट्रेड से होता था। सो देयर सोशल ओरिजिन वर ऑफन ऑब्सक्योर, बट एज वी विल सी इन द केस ऑफ द सातवाहनाज, वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वेराइटी ऑफ वेज। इनके बारे में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बहुत सारे ऐसे ग्रैंडियोस टाइटल्स एक्वायर किए, कैरी किए इन लोगों ने, चाहे वो सातवाहनाज हों, चाहे वो सकाज हों, चाहे वो कुशानाज हों। इनके बारे में, कुशान पीरियड के बारे में हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद अ वेराइटी ऑफ डाइटीज। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कुशानाज। कहते हैं कि कुशान टाइम में जो कनिष्क, कुशान पीरियड के डायनेस्टी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हुए हैं वो कनिष्क थे, और जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन हमें देखने को मिलता है, द प्योर गोल्ड कॉइन, द कॉइन वॉज मेड बाय अ प्योर गोल्ड दैट डिराइव्ड फ्रॉम द कुशानाज डायनेस्टी। सो पहली बार जो गोल्ड कॉइन बना वो कुशाना डायनेस्टीज के टाइम पीरियड में बना, हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। Their history has been reconstructed from inscriptions and textual tradition। inscriptions से बहुत सारी इनकी हिस्ट्री देखने को मिलती है और टेक्सुअल ट्रेडिशन भी हमें देखने को मिलता है। The notion of kingship they wish to project are perhaps best evidenced by in their coins and sculptures। sculptures and coins से इनकी ज़्यादा हिस्ट्री में पता चलती है। Then colossal statue of कुशानाज, अभी जो हमने दिखाया आपको सैंडस्टोन से बना हुआ स्टेच्यू, have been found installed in a shrine at Mat near Mathura, Uttar Pradesh, and similar statue have been found in a shrine in Afghanistan as well। So some students feel this indicates that the Kushanas considered themselves god-like, and god-like title जैसे देव पुत्र, son of god, ये टाइटल एक्वायर करते थे, और वो भी possibly inspired by the Chinese rulers who called themselves son of heaven। जो चाइनीज रूलर्स थे वो अपने आप को स्वर्ग पुत्र मानते थे, और उन्हीं की देखा था कि ये जो कुशाना डायनेस्टी के रूलर्स थे वो अपने आप को गॉड, सन ऑफ गॉड मानते थे। सो अब हम देखते हैं गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड जो 4th सेंचुरी CE, अब हम बिल्कुल आ जाते हैं CE पे, और 4th सेंचुरी में जो सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुई है वो गुप्ताज की हुई है। तो बाय द 4th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। और आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड एंड समुद्रगुप्त, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी। बहुत लंबे पीरियड तक, टाइम स्पेन तक इन्होंने रूल किया, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स इन्होंने रूल किया इंडिया को। और समुद्रगुप्त के बारे में एक जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो एक आयरन इंस्क्रिप्शन हमें मिला है इलाहाबाद में नदी के किनारे, वो बहुत सारी इनकी सोर्सेस हमें रिवील करता है गुप्ताज पीरियड के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, कि वो बहुत अच्छे रूलर थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे,
बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। तो इट मीन्स कि ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग एट दैट टाइम। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहते हैं कि ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस पीरियड। एंड आपने देखा होगा कि विक्रम एंड वैताल, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो उज्जैनी इस एरिया को रूल करते थे, यहाँ के राजा थे। विक्रमादित्य जिनको कहा जाता था, उनका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी था। और विक्रम और वैताल वाली जो कहानी आपने देखी है, जो माना जाता है कि फिक्शन है ये, लेकिन फिर भी वो उसी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है। तो ये 4th सेंचुरी में हुए हैं, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मेन पार्ट था सामंताज। सामंताज जैसे आप यूरोपियन हिस्ट्री में आपने देखा है कि वहाँ भी जो मेन जो नोबिलिटी क्लास थी, वैसे ही यहाँ पे सामंताज थे जो कंप्लीटली कंट्रोल करते थे लैंड पार्ट को, और किंग को ट्रिब्यूट एंड ट्रेडिशनली उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री हेल्प करते थे, और इस तरह से पूरी पावरफुल जो किंगडम थी गुप्ताज की, वो यहाँ पे एक्वायर किया उन्होंने और इंडिया को रूल किया, नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट। सो प्रयाग प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, composed in Sanskrit by Harisena, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of the Gupta's rulers. And in this video